Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and very warm welcome to you all. So, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये मैं हमेशा बताती रहती हूँ बट स्टिल ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सबको इस सब के बारे में अवगत कराऊंगी, राइट? सो 6 to 8 का ओलम्पियाड लेवल जो प्रिपरेशन होता है वो हम लोग आपको करवाते हैं. 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, NTSE, NSCJS एंड PRMO. So the good part is, as I always tell you, that we start from the very basic level and then we gradually move on to the NCERT and then finally Olympiad level. Clear children? So I believe कि आप लोगों को कहीं switch करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी और चैनल पर. You can just stay here and rely on us जो भी हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, राइट? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है तो आई एम श्योर कि पूरा सब कुछ चीज़ें समझ में आती जाएगी. क्लियर चिल्ड्रन? बस हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है, राइट? फेथ रखना है हम लोग के ऊपर, राइट? स्टार्ट टू फिनिश लेक्चर अटेंड करना है, रिविजन करना है, जो होमवर्क हम लोग दे रहे हैं उसको कंप्लीट करके सबमिट करना है, डाउट पूछना है और टेस्ट देना है, राइट? ये सब करने को तैयार हो तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे बच्चों. क्लियर? आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन डेटा हैंडलिंग फॉर क्लास 8 ऑब्वियसली, एक्सक्यूज मी. एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3, राइट? 2 लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. क्लियर? This is our amazing team. This is me. I'm taking an MTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. And this is our Telegram channel for different classes. So, for example, this current lecture is for class 8. So, you're supposed to search TTB08 and just join us there. और फिर वहाँ पर क्या होगा बच्चों, यह होगा that we'll be posting the links there. और उन लिंक से ये होगा कि you just need to tap on the link. So, पहली बात तो ये कि you won't have to search the lectures anywhere. Second, important thing is that आपको notifications आता रहेगा तो आपको कोई lecture miss नहीं होगा, कोई information miss नहीं होगा. That is what we want, right? जिस तरह से proper time table follow होता है वही टाइम टेबल फॉलो होगा चिल्ड्रन. स्कूल्स में जिस तरह से होता है ना बिल्कुल वैसा ही टाइम टेबल फॉलो होगा. आपको एक एक करके लेक्चर सारे अटेंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है और साथ के साथ थोड़ा बहुत आउटडोर गेम्स भी खेलने हैं. क्लियर? और आउटडोर सिंस ड्यू टू कोविड अभी हम जा नहीं पा रहे तो घर में ही एक्सरसाइज करनी है. बट 1 घंटा हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ठीक है? A healthy body has healthy mind. Clear? Now, further moving on, ये जो डांस करते हुए आपको दिख रही है that is our website talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको 2 पैकेजेस दिखेंगे. So, you are supposed to use my code AVLIVE, you will get 30% of discount. तो एक है जो complete package है वो हो जाएगा 6300 का. You're going to get the study material and the test series and बाकी जो चीज़ें mention है. And the second package is the test package. Again, that will be for 2450. And अब उसके अंदर भी क्या है चिल्ड्रन कि देखो bi-weekly quizzes, right? Bi-weekly quizzes and video lectures. These are free. Bi-weekly quizzes आपको कहाँ मिलेंगे? On our website, and video lectures you are going to get on our channel, YouTube channel. Clear children? So I hope I have made everything clear. इसके अलावा भी कुछ information है जो आपको जाननी है. So you can call in this number 9549041111. This is our helpline number children. और कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग, मटेरियल के रिगार्डिंग या कुछ फीडबैक देना है, anything that you want to know or ask or tell, you can call on this number or you can telegram it to me as well or you can write it in the comment section below. Is that clear children? I hope I have made everything clear. So हमारा जो ritual है उसको हम complete करेंगे and then we'll start with our lecture for today. So we have done all this. Let me tell you. Lecture 1 we have studied. Yes, we did the questions as well. Okay. फिर लेक्चर 2 में वी डिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं यार. आई लाइक दिस.
I like the colors of it. It's beautiful. It's beautiful, I tell you. ये भी हमने पढ़ लिया था, हिस्टोग्राम्स पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस भी हमने किए थे. फिर लेक्चर 3 के अंदर क्या हो रहा था बच्चों, अब मैं बता देती हूँ. देखो, पाई चार्ट अपन ने लास्ट लेक्चर में, मैंने पाई चार्ट का एक वो दे दिया था कि भाई आइडिया कि क्या होता है, राइट. अभी भी मैं वही आइडिया को दोबारा दोहरा दूंगी. कोई उसमें कुछ अलग नहीं होगा. देखो, वही का वही बात मैं दोबारा बोल दूंगी. क्योंकि है ही वही, अब जो है वो तो तब भी वही बोलूँगी, अभी भी वही बोलूँगी, समझ रहे हो. पर अब हम समझेंगे क्या कि किस तरह से हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, है ना, पहली बात. और दूसरी बात, जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती है इसी से ही रिलेटेड, राइट, वो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, है ना. सेंट्रल टेंडेंसीज क्या क्या होती हैं, और उनको हम, जैसे कोई गिवन डेटा है तो किस तरह से हम लोग उनको लाइक हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू प्रिसाइसली इन दिस लेक्चर. क्लियर? ठीक है. इसका प्री रिक्विजिट क्या है? लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 इज द प्री रिक्विजिट ऑफ दिस लेक्चर. पर्टिकुलर लेक्चर का प्री रिक्विजिट वही है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, बस जो मैंने बोला, राइट. एंड ऑब्वियसली हम लोग क्या कर पाएंगे, पाई चार्ट को समझ पाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, सेंट्रल टेंडेंसीज निकाल पाएंगे, ये सब कर पाएंगे. ठीक है. हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? चलो, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं अभी फिर बता देती हूँ कि पाई चार्ट क्या है. वाई इज इट कॉल्ड पाई चार्ट? बिकॉज इट इज राउंड इन शेप एंड पाइज आर ऑल्सो राउंड इन शेप. दैट इज वाई दिस इज नोन एज पाई चार्ट. एंड what are we actually doing? We are representing, right, जो डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू दिस सर्कल. और सर्कल में किस तरह से, जो वेरिएबल डेटा है, राइट, जो वेरिएबल है वो हम डिपिक्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स, है ना, थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल. और टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड as well as easily understandable, we color it with different colors. हम लोग उसको डिफरेंट कलर्स से कलर कर देते हैं, अट्रैक्टिव लगता है और समझ में भी आ जाता है आसानी से, राइट. एंड वी गेट मोर मार्क्स सब्जेक्टिव, राइट. तो दिस इज व्हाट अ पाई चार्ट इज ऑल अबाउट. वही मैंने कहा था, पिछले लेक्चर में भी बोली थी. A diagram used to represent statistical data by dividing a circle into sectors. जैसा कि मैंने बोला कि भाई आप सर्कल के सेक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड करते हो. डिवाइडिंग अ सर्कल इनटू सेक्टर्स, राइट, इज नोन एज पाई चार्ट और पाई ग्राफ. एक्सक्यूज मी. पाई ग्राफ्स आर सर्कुलर, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ. सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं. Each sector of a pie graph shows a fraction of the total. Obviously it is doing that, right. अब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रैक्शन के अंदर हमने पिज्ज़ा पढ़ा था, तो पिज्ज़ा का एक साइज हमने निकाला, तो कितने एग्जाम्पल लिए थे भाई, कितने एग्जाम्पल कि भाई इफ़ अ बॉय इज ईटिंग 1 piece of the pizza and there are 4 pieces, so how much is he having, right, he is having 1/4, right. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इसका ये मतलब है चिल्ड्रन कि अगर हम एक पार्ट, कोई भी एक सेक्टर जो डिनोट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को, जो भी हमें गिवन है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे होल का वो पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक इट इज पार्ट ऑफ द होल. ऑब्वियस है ये बात, है ना. इट शोज द रिलेशन ऑफ द पार्ट विद द होल. क्लियर? ये हमको पता है, ये हमको आता है ना. नेक्स्ट, अब इसी से ही रिलेटेड कंस्ट्रक्शन किस तरह से होगा ये हम देखें. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, उनसे पूछा, सर्वे हुआ कि हु आर लाइक साइंस फिक्शन, हु आर लाइक ड्रामा, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू दे लाइक watching, right. So the pie chart representation tells us that 20% liked comedy, 25% liked action, 30% liked romance, 5% liked drama and 20% liked science fiction, right. तो अब इससे मुझे ये पता लग रहा है देख करके कि there are more number of people, more number of students who are liking romance here, है ना, जिनको romance जो है जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद है. Okay, just a second children, give me a second till you write this. Alrighty, is this fine now? Okay, it's fine. Chalo, good. Written?
अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो अपन देख लेते हैं इसका, है ना। फ्रॉम द गिवन डेटा वी फाइंड द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले अपन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, डू नॉट वरी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले तो जो मुझे फ्रीक्वेंसीज दे रखी है ना भाई, कोई भी सर्टन नंबर है, सर्टन जो भी डेटा मुझे गिवन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी जो भी मुझे टेबल में गिवन है उसका मैं टोटल कर लूँगी, सबसे पहली बात तो ये। देन फॉर ईच वेरिएबल वी कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर। भाई करना क्या है, टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है चिल्ड्रन, कंप्लीट एंगल इज व्हाट 360 डिग्री, राइट। ये एंगल कितना होता है, दिस इज 360 डिग्री। और क्योंकि सेक्टर्स यहीं पर ही बनाने हैं, कैन यू सी इट चिल्ड्रन, राइट, और सेक्टर्स मुझे यहीं पर ही बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली वो जो फ्रीक्वेंसीज मुझे गिवन है उसको मैं सेक्टर्स में कन्वर्ट करूंगी, उसको मैं डिफरेंट सेक्टर्स में कन्वर्ट करूंगी। तो उससे क्या होगा, देखो, फॉर ईच वेरिएबल वी कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर, दैट इज एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेक्टर मीन्स एंगल at the center of the circle, that is what I am going to calculate, which is known as this angle is called the central angle, है ना। central angle अपन हर एक सेक्टर का कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। now how are we going to calculate that is the important part here, ठीक है। सेंट्रल एंगल ऑफ अ वेरिएबल, सेंट्रल एंगल ऑफ अ वेरिएबल क्या होगा, देखो मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है ना। अब मेरे पास जिस भी वेरिएबल का मुझे कैलकुलेट करना है सेक्टर एंगल, मतलब पॉइंट ये कि सेंट्रल एंगल मुझे कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूँगी, उसका फ्रीक्वेंसी लिया, है ना, उसका फ्रीक्वेंसी लिया डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, रेशियो। रिमेंबर रेशियो ऐसे ही करते थे भाई, रेशियो 2 पर्सन है उनमें डिवाइड हो रहा है, मान लो 100 रुपीज़ है, वो 2 पर्सन में डिवाइड हो रहे हैं, तो A/B में डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये रेशियो है तो A का कितना पार्ट है, B का कितना पार्ट है, तो व्हाट वी यूज टू डू, भाई A का पार्ट अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय जो अमाउंट है जिसे मुझे डिवाइड करना है ना। तो उसमें भी सेम लॉजिक, देखो फ्रीक्वेंसी जिस वेरिएबल का मुझे सेक्टर फाइंड करना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल एंगल कितना है ना, टोटल अमाउंट जिसे मुझे डिवाइड करना है, तो किसको डिवाइड करना है, टोटल अमाउंट मेरे पास 360 डिग्री है, इस 360 डिग्री को ही मुझे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती क्योंकि है ही मेरे पास 360 डिग्री, है ना। सर्कल का एंगल जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 होता है, उसी को ही मुझे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है ना, इसलिए मैंने उससे मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस, जैसा भी आपको अच्छा पसंद आए, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4.5, 3, वट एवर एज यू लाइक, जितना जगह है आपका कॉपी में आपको लगता है नीट क्लीन, राइट। फिर वी ड्रॉ द सेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल्स कैलकुलेटेड टू स्टेप 2 अबव। अब इस फॉर्मूला से चिल्ड्रन हम हर एक वेरिएबल का, जो भी मुझे वेरिएबल गिवन है, मैं हर एक वेरिएबल का सेंट्रल एंगल निकालूंगी, है ना। हर एक वेरिएबल का, मान लो मुझे 5 डिफरेंट डेटा गिवन है, 5 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, हर एक फ्रीक्वेंसी का मैं सेंट्रल एंगल निकालूंगी, मतलब 360 डिग्री को मैं एक्चुअली 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, 5 डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करूंगी, है ना। वो कर दिया मैंने, एंड देन वी कैन ड्रॉ दैट इजीली। आप प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ कर लो उसको, है ना, अपने को एंगल पता लगी क्या है, प्रोट्रैक्टर यूज करो और उससे ड्रॉ कर लो। देन राइट डाउन द नेम्स ऑफ द वेरिएबल एंड द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल्स इन द सेक्टर। मान लो दिस इज 60 डिग्रीज, राइट इट डाउन फॉर व्हाट, से people like fruits more or vegetables more or fast food, things like that, right. So 60 degree is the sector which represents people who are liking fruits here, ठीक है। this is just an example, clear। थोड़ा बहुत आया समझ में, एक आउटलाइन समझ में आई, it is not a problem children, when we are going to do the question you will automatically understand what to do, ठीक है। Please write it down first.
Clear? Next. Okay. Let's talk about, we are going to do questions, don't worry. But first, let's talk about the central tendency. Now, what is it? Central tendency? It is the value where like all of the data converges. Like it is that single value where all of the data, मतलब जितना भी हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है वो सब कन्वर्ज हो जाए, या ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट करता हो उस पूरे कंप्लीट जो मुझे गिवन डेटा है उसको, लाइक द डेटा कन्वर्जेस देयर, राइट, उन्हें बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसीज. सो अगर हम डेटा हैंडलिंग की बात करें चिल्ड्रन, तो डेटा हैंडलिंग में 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है. तो अब इफ वी टॉक अबाउट मीन, मीन इज नथिंग डिफरेंट देन एवरेज. इट इज एवरेज ओनली. जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं ना, इट इज द सेम थिंग. See, the mean of a number of observation is the sum of the values of all the observations divided by the total number of observation. ये करते हैं. Average में क्या करते हैं? What is average? When you add all the values that are given to you, है ना, divided by the number of observations. That is what you do in average. Excuse me. Right? That is what you do in average. Say that is the mean. That is known as mean. Data handling में उसको mean बोल देते हैं अपन. Right, divided by total number of observation. It is denoted by the symbol x and a bar over that, read as x bar. X bar. ठीक है. अब ये है mean of ungrouped data. अब हम कैलकुलेट करेंगे. अभी ग्रुप डेटा की अपन बात नहीं करेंगे चिल्ड्रन. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन लेटर क्लासेस, यू कैन से, मतलब हायर क्लासेस. अभी हम लोग सिर्फ अनग्रुप डेटा तक की ही बात कर रहे हैं. तो क्या करेंगे, जैसे देखो बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो पूरा टैबुलर फॉर्म बनता है एंड देन यू कैलकुलेट इट दैट वेज, वो इट इज़ डिफरेंट. बट देन अनग्रुप डेटा में क्या हो रहा है, सिंपली व्हाट यू गोइंग टू डू इज, सी x1, x2, x3 up till xn values are given to you. What you will do are the n values or observations, then arithmetic mean, right? This mean का पूरा नाम जो है, जैसे आपका पूरा नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम है पूरा अदिति व्यास, वैसे ही इनका मीन का पूरा नाम है अर्थमेटिक मीन. समझ गए? ठीक. तो अब वो क्या है, अर्थमेटिक मीन और एवरेज एक्स बार इज इक्वल्स टू sum of all the observations upon number of observation, which is written like this, summation xi upon n. Now what is I, children? Here see, summation xi. Now what does that I means? I is equal to the number of observations from 1 to n. ठीक है. I means it is the value of x from 1 अप टिल n, 1 से लेकर n तक की जितनी भी वैल्यूज आ रही है उन सब का समेशन करना है अपॉन n, राइट. सो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट, समेशन एक्स है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बस भाई देखो सिंपल फॉर्मूला है एक, उसमें से 2 चीजें अगर आपको दे रखी है, मतलब 3 उसके अंदर वेरिएबल्स है, राइट, 3 चीजें हैं, 3 डिफरेंट चीजें हैं एक फॉर्मूला के अंदर, उसमें से 2 वैल्यूज आपको दे रखी है, तो तीसरा अपने आप फाइंड कर लोगे. अब चाहे एवरेज फाइंड करना हो तो सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई होगी, और सम फाइंड करना है तो एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई होगी. सिंपल, you'll simply multiply n into x bar. That will give you what, summation x I means sum of all the observations. Simple, right? Please write it down, then we'll do questions related to it. Is that clear, children? My pure children. करने? चलो, let's move to the next question. Oh, sorry. Oops. Mean. Now median. Now we'll talk about median. Median क्या होता है बच्चों? जो भी मुझे गिवन ऑब्जर्वेशन है, जो भी मुझे डेटा गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी गिवन है डेटा का, उसका मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है दैट इज नोन एज द मीडियन. ठीक है. अब देखो देयर इज अ वे टू डू दैट, मतलब फाइंड इट आउट, देयर इज अ वे. और वो क्या है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अनग्रुप डेटा की, अभी अपन अनग्रुप डेटा ही बात करें. ग्रुप डेटा में पूरा टेबल वगैरह बनता है एंड वी डू इट लाइक दैट वेज, है ना. वी आर नॉट डीलिंग विद दैट राइट नाउ.
अपने सिलेबस में अभी यही है कि हम अनग्रुप डेटा को देखें, ठीक है। सो अनग्रुप डेटा मुझे गिवन है, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुझे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैंने उनको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। देन आई विल काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लूँगी। इफ इट इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, देन विच वैल्यू वुड बी द मीडियन? सी n plus 1 by 2 observation, right? For example, see it says, what did I say, odd or even? Odd बोला मैंने, even बोला children. I guess I said even or odd, whatever it is, but then it is odd. Okay, मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला, तो ठीक है. If I said even, then that is wrong. It is odd number of observation, right? So for example, if there are 9 observations, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 ऐसे ही नंबर ले लेते, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही ले लेते ताकि समझ में आ जाएगा हमको. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, राइट. सो आई हैव 9 ऑब्जर्वेशंस, है ना, एंड ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे पता करना है कि भाई इसमें मीडियन कौन सा है. तो what I'll do is, number of observation is, see n denotes what, let there be n observation, n is equals to number of observation, right? N is equals to, let me write it here, n is equals to number of observations, clear? n is equals to number of observations. So n लिखा मैंने प्लस 1 by 2, that is मतलब 9 plus 1 observation, so 10 upon 2, that is 5th observation. This does not tell the median, मतलब median का वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ये वो बता रहा है कि इसके अंदर कौन से नंबर का जो पोजीशन, मतलब इट इज टेलिंग अस द पोजीशन. चिल्ड्रन, ये पोजीशन बता रहा है कि कौन से पोजीशन वाला जो नंबर होगा वो इसके अंदर यूज होगा, मतलब वो मीडियन होगा. सो दिस सेज 5th ऑब्जर्वेशन. सो 1, 2, 3, 4, 5, 5th ऑब्जर्वेशन मतलब मीडियन क्या हो गया यहाँ पर 5. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 ऑब्जर्वेशन. सो लेट अस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है. मेरे पास, लेट मी राइट इट डाउन ताकि वो इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं. चलो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6 है, इवन है. तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी चिल्ड्रन? सी फर्स्ट इसके अंदर मैं कैलकुलेट करूंगी n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 6 अपॉन 2, दैट इज 3rd ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एंड n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 3 प्लस 1, दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? 3rd and 4th ऑब्जर्वेशन जो मेरी है, दैट इज 1, 2, 3 and 4, मतलब ये वाला और ये वाला, इनका मीन निकालना है मुझे. मतलब 3 प्लस 4 अपॉन, लेट से दिस इज 2 क्योंकि 2 ही है, राइट. 4, 5, 6, 7, 7 by 2. नाउ दिस बिकम्स द मीडियन, राइट. क्लियर चिल्ड्रन? ये मेरा मिडिल नंबर बताएगा. सी दिस इज व्हाट इज रिटन. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेट देयर बी n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो है n. इफ n इज ऑड, n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है, then value of n plus 1 by 2th observation, n plus 1 by 2th observation is the median.
इफ n इज इवन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन, देन मीडियन कौन सा होगा? वैल्यू ऑफ मीन, जो मीन का वैल्यू निकलेगा ना बेटा वो होगा क्या? दैट विल बी द मीडियन ऑफ इवन डेटा, इवन गिवन ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ गए? अपन अभी अप्लाई करेंगे तो सब समझ आ जाएगा सब। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, दिस इज मोड, मोड of ungrouped data. Mode is, see, arrange the data in an array and then count the frequencies of each variate. The variate having maximum frequency is the mode of that given observation. समझ गए? मतलब मुझे अगर कोई ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसके अंदर ऐसा डेटा या ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसमें अगर किसी ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, समझ लो बस बस बेटा वही है, वही मोड है, उस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का वही मोड है। समझ गए बेटा? फाइंड द मोड ऑफ द डेटा सेट प्राइसेस ऑफ कैंडी, लेट्स से ये दे रखिए 1537336। अब इसमें 3 इज रिपीटेड, 3 है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, बाकी सब सिंगल टाइम ही है, पर 3 की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो द नंबर 3 इज द मोड बिकॉज इट इज द स्कोर दैट अकर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। got it children? Copy it down and we'll do questions. ठीक है, नेक्स्ट चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। अपन ने जो समझा था पाई चार्ट किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, तो अपन उसी को ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो, द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय अ स्कूल बॉय ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ वर्किंग डे इज गिवन बिलो, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। तो वो बोल रहा है देखो, एक्टिविटीज, स्लीप फॉर 8 hours, these are hours children, 8 hours, school is 7 hours, home 4 hours, play 2 hours, others 3 hours, total is 24 hours। 24 hours total हो गए। तो अब इसके अंदर उन्होंने जो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी है, राइट, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, नहीं तो ऐड भी कर सकते थे, बट नॉनदलेस अपन क्या करेंगे देखो, what are we going to do? 10 and 24, central angle for sleep, सेंट्रल एंगल ऑफ स्लीप निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? 8 गिवन है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 24। और टोटल एंगल जिसको मुझे डिवाइड करना है, कंप्लीट एंगल जिसको मुझे डिवाइड करना है, वो क्या है बच्चों? 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 24 into 16, ज्यादा हुई गवा, उड़ी बाबा, तो नहीं होगा। देखिए ना, मैं क्या करने की कोशिश करी बेटा, देखो इसी को यहीं पे ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 1 4 5 6 4 5 20, तो ये आ गया 15। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को 15 से, मतलब 360/24 इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि 24 कंप्लीट टोटल फ्रीक्वेंसी है, दैट विल रिमेन सेम। 360 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सेंट्रल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल वही है, उसी को डिवाइड करना है। तो मैंने यहीं पर इसको डिवाइड करके देख लिया कि भाई 15 इट इज राइट। तो बस अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 120। ठीक है, अरे यहाँ पे मैंने ये क्यों लगा दिया, उड़ी बबल। ठीक है,
ठीक, अब सेंट्रल एंगल फॉर स्कूल, स्कूल के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, 7, सेम थिंग 24 इंटू 360. तो अब आई ऑलरेडी नो कि आई एम सपोज टू मल्टीप्लाई इट विथ 15, राइट. दिस इज इक्वल टू 15 चिल्ड्रन. तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगी, 105 डिग्रीज है ना. फिर सेंट्रल एंगल फॉर होम, 4 से 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. अब प्ले के लिए कितना हो गया, प्ले इज 2 hours. मैं डायरेक्टली यहाँ पे 15 क्यों लिख रही हूँ ये पता लग रहा है ना, मैंने यहीं पर ही कैलकुलेट कर लिया. वी विल बी डूइंग द सेम थिंग. मतलब 2 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया अपॉन 24, मतलब 2 से डिवाइड किया अपॉन 24 इंटू 360 विच विल गिव मी अगैन 15 डिग्री. सो आई हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड, right? I directly multiplied 2 with 15, so I'm getting 30 here. Then as others, that is 3 into 15, 45 degrees. तो अब मुझे 360 डिग्री के सारे वो मिल गए. ठीक है, अब इसको हम लोग कर सकते हैं कहीं ना कहीं डिवाइड. ठीक है, अब कर दो, डिवाइड कर दो. ठीक है, सबसे बड़ा एंगल जैसे कि मान लो यहाँ बन गया है ना, और ये बन गया मान लो like how I'll draw it children, बिना प्रोट्रैक्टर के तो I cannot draw ना. ऐसे मान लो ये मैंने एंगल ड्रॉ किया, अब दिस इज समवेयर 120 डिग्रीज मान लो. ठीक है, अब लेट्स से अगर मैं ड्रॉ करूं थोड़ा सा इधर मान लो, इज दिस ग्रेटर देन दिस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको. चलो मैं तो अब अंदाज से बना रही हूँ ना चिल्ड्रन, समझ रहे हो आप. सो दिस इज 105 डिग्रीज, राइट. Now what remains is 60 degree, 30 and 45. So 60 degree, 30 and 45. So let's say this is 45 degrees. Let's say this is 60 degrees and 30 degrees. Somewhat like this. But then you are supposed to use protractor children. मैंने तो एकदम rough बना दिया है. बस मैंने ये देखा कि भाई 120 इज द ग्रेटेस्ट, तो 120 का सबसे बड़ा सेक्टर दे दिया मैंने, फिर उससे छोटा 105, फिर थोड़ा बड़ा 60, 40 उससे छोटा 30 सबसे छोटा. मैं तो बस नॉर्मल जो अपन सेंस लगाते हैं उससे करके किया है. बट देन यू आर सपोज टू यूज व्हाट, प्रोट्रैक्टर से बनाना चिल्ड्रन, बिकॉज वी नो द एंगल नाउ, राइट. हमें एंगल पता है. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना, प्रोट्रैक्टर रखो, 120 डिग्रीज किया, फिर उस प्रोट्रैक्टर को यहाँ पर रखा ऑन 0, लाइक 0 जहाँ पे शो होता है वहाँ पे रखा, एंड देन वहाँ से 105 डिग्रीज कैलकुलेट करके एंड देन ड्रॉ लाइन देन 60, 45 एंड 30. ठीक है, क्लियर. कॉपी डाउन चिल्ड्रन, इसको कॉपी कर लो तो बेटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. ऑलराइट, एक और करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी. देन ऑब्वियसली यू विल बी डूइंग इट, है ना. बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे 2-3 और इसी पे बेस्ड, जिसमें आपको यू आर सपोज टू ड्रॉ द पाई चार्ट. देयर यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, लाइक इट विल बी योर होमवर्क, बिकॉज यू विल बी नोइंग दैट. बिना प्रैक्टिस के कैसे होएगा फिर चिल्ड्रन, है ना.
The following data shows the expenditure of a person on different items during a month. Represent the data by a pie chart. So we are supposed to represent it by a pie chart here. Now, items of expenditure are rent, education, food, clothing and others, and amount is given here. So let's calculate the total of the frequency, right? Total frequency, because we will be needing it. Total frequency is how much? That is 2700 plus 1800 plus 2400 plus, what did I do? 27, 18, 24, okay. So this is 1500 plus 2400 again. Alright, 1, 2, 3, 4, 5. So I'll have two angles which will be same, of same measures, right? जो others और food के हैं. So this is how much total frequency is 0 and 0, and which is, so 7, 12, 12 and 8 is 20, 28 it is 2, 2, 2, 4, 6, 8, 9 and 10. 1800, right? 1800 हो गया. अब सेंट्रल कंप्लीट एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल या एंगल एट द सेंटर इज, complete angle is 360 degree. Now, central angle for rent. Let's calculate central angle for rent. That is going to be, जो rent का frequency है, that is 2700 upon total frequency, that is 10800, means 10,800, and the complete angle, that is 360 degrees, right? So again children, this is going to go 8, 9, 9 ones are 9, 9 twos are 18, 36 and 0, fine, and 4 threes are 12, 10. So you are supposed to multiply by 10 by 30 or 10 by 3. ठीक है, we are supposed to multiply. मैंने क्यों डायरेक्टली इसको पहले कर दिया? देखो, हर एक में एंड में we have 2 zeros, like the ones and the tens place is 0 only. तो वो मैं 10,800 में 0 0 से I can easily like divide it. But then if I talk about 360 upon 108, then that is 10 upon 3. That is 10 upon 3. We are supposed to multiply by 10 upon 3. तो अब मैं इसको अगर करूँगी, let me do it here, no? So, central angle for rent comes out to be what? That is 27 into 10 upon 3. Right? Understand why I did this? ठीक, आगे हमें काम आएगा. 9 3s are 27, so 9. Oh, so less. Is it so? Seriously? 9 3s are 27 and 90 degrees. ठीक है? Then next, central angle for education, that will be 18. डायरेक्टली 18 से कर दूं? चलो, एक इसमें भी मैं करके बता देती हूँ. 1800 into 360 degree upon 10,800. Let me not use this comma. Now, this 0 0 gets cancelled. Again the same thing, 10 by 3 से ही मुझे multiply करना है. तो I'll be ultimately doing what? 10 upon 3. तो मुझे आंसर कितना मिल रहा होगा? 60 degrees. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली निकाल दूंगी. So, angle for
एडुकेशन के बाद इट इज फूड, फूड दैट इज इक्वल टू अदर्स एज वेल। फूड के लिए कितना है, इट इज 2400, तो 24 इंटू 10/3 दैट विल बी 3 8 जा 24, 80 degrees, which is also equal to that of others, right? And finally clothing, I'll do it for clothing as well. Clothing का है 1500, तो what I'll do 15 into 10/3, 3 5 is 15, 50 degrees, right? तो ये कितना हो गया? How much are we getting? 1 2 3 4 5. क्या क्या एंगल्स आ गए चिल्ड्रन मेरे पास? I got 90 degrees, then I got 60 degrees, I got 280 degrees and 50 degrees. ठीक है, प्लीज ड्रॉ इट चिल्ड्रन। अपने स्वयं के कॉपी में बना लेना। तो बहुत ही गंदा सा सर्कल बन गया है, लेट्स मी ड्रॉ इट। ठीक है, एक तो हो गया 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज इज व्हाट? 90 degrees is rent, so you can mention it like this, rent 90 degrees, then it is 60 degrees, all right? So here somewhere so this is education 60 degrees and so on and so on so forth. You can draw the rest of it. Clear? चलो फटक से बना लो, तो फटक से बच्चे, अच्छे बच्चे। हो गया? नेक्स्ट करें हम। दिस इज योर होमवर्क चिल्ड्रन, दिस यू आर गोइंग टू डू। अब देखो इसमें कंप्लीट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? सी दिस इज व्हाट विल बी द कंप्लीट फ्रीक्वेंसी। अब दिस इज व्हाट? परसेंटेज 40/100, सिंपल, राइट? 40/100, राइट इट डाउन देन। कर लो इसको, है ना? कंप्लीट फ्रीक्वेंसी जो टोटल फ्रीक्वेंसी दैट विल बी 100, और बाकी पर्सनल फ्रीक्वेंसी जो आपको 40 कैलकुलेट करनी है, 40/100 इंटू 360। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सेम परसेंटेज क्या करना है, देखो जैसे 14 है, 14/100 इंटू 360। क्लियर? नेक्स्ट, ऑलराइट, इसको ओपन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ ना कुछ तो कहता है। लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट, जब तक आप लोग करो तो देखा, करो तो बच्चा, डू इट। टिल देन आई विल ड्रिंक वाटर। किया? देखो, the pie chart given in figure shows the annual agriculture production of an Indian state. If the total production of the commodities is 81,000 tons, find the production in tons of। अब ये जो मुझे कंप्लीट एंगल दे रखा है 360 डिग्री, समझ गए हम। सेक्टर्स जो दे रखे हैं अलग अलग, वो 360 डिग्री को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पर अब पॉइंट ये है, वो ये पूछ रहे हैं कि वीट, शुगर, राइस, मेज और ग्राम टन्स के उसमें कितना है, मतलब कंप्लीट है कितना, 81,000। कंप्लीट कितना है चिल्ड्रन? 81,000 टन्स हैं। अब उस 81,000 टन में, समझ गए आप, कंप्लीट जो है, कंप्लीट मेरे पास कितना धान है यहाँ पर, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हुआ है क्रॉप्स का, वो कितना है, 81,000 टन। पर उस 81,000 टन में से मेज कितना है, वीट कितना है, राइस कितना है, एंड वट एवर दैट इट इज आस्किंग। यहाँ पे मेज का स्पेलिंग गलत लिखा है, MAIZE,
मेस MAZD लिख दिया, बताओ यार कुछ भी यार। बट एनीवेज, सो उस 81,000 टन में से वीट कितना टन है, शुगर कितना टन है, राइस, ग्राम और मेज कितना टन है, ये हमको कैलकुलेट करना है। मतलब अभी कंप्लीट जो मैं किससे मल्टीप्लाई करती थी चिल्ड्रन, जो टोटल एंगल, जो टोटल कंप्लीट अमाउंट रहता था जिसको मुझे डिवाइड करना होता था, उससे मैं मल्टीप्लाई करती थी। बट अभी यहाँ पे किसको मुझे कंप्लीट अमाउंट क्या है, 81,000 टन है, उसे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, किस में, अलग अलग ये फ्रीक्वेंसीज है जिसमें, है ना। तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी कितनी हुई मेरे बच्चों, 360। हियर नाउ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी अब यहाँ 360 डिग्री नहीं है, यहाँ ऑलरेडी ड्रॉन है, वो ऑलरेडी बना हुआ है वो सेक्टर्स में। अब मुझे इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है टन में, है ना, मुझे इसे कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 360 डिग्रीज, है ना, एंड टोटल अमाउंट विच इज टू बी लाइक सेपरेटेड, है ना, वो क्या है, 81,000 टन। तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अब मैं सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल एंगल कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, सेंट्रल एंगल ऑलरेडी है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ वीट या प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो लेट्स डू दैट। फर्स्ट वो वीट के लिए पूछता है, प्रोडक्शन ऑफ वीट। प्रोडक्शन ऑफ वीट कितना होगा चिल्ड्रन, देखो wheat is shown by purple. I hope you can see it, right? Yes, wheat is shown by purple color, which is this. That means it is 120 degrees. So I'll write it down. 120 degree, that is the central angle or the sector of wheat divided by the complete angle into the complete production. ठीक है, overall production जितना है, that is 81,000. अब अपन क्या करेंगे, this will remain constant children. 81,000 upon 360 will remain constant in each and every frequency, है ना, हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए ये like this will be there. तो अपन इसी को ही कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अलग अलग एंगल से, जो अलग अलग मेरी फ्रीक्वेंसीज गिवन है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जो सेंट्रल एंगल्स गिवन है। तो लेट्स डू दैट। टू 25, ठीक है। सो हम सपोज टू मल्टीप्लाई 120 डिग्रीज with 225, which gives me what, 225 into 12, 5 2s are 10, 2 2s are 4 and 5, 2 2s are 4, 5 2 2, which gives me how much, 0 0 again 0 1, 4 5 4 5 6 and 7 and 2, so 27,000 tons, right? This gives me 27,000 tons. अब मैं क्या करूँगी, अब what am I going to do? Production of wheat के बाद next is production of sugar that it is asking. तो production of sugar भी calculate कर लेते हैं। Second, sugar का production कितना है? Sugar is shown by green color, right? Fluorescent green, I like it. 100 degrees. तो 100 degrees को मुझे simply किससे multiply करना है? 225 से. So I'll get what? 22500 ton. That is 22,500. 27,000, right? ठीक है. 7 8 9. 49,500 तो हो चुका है. But then third is rice that I am supposed to calculate for. Rice is shown by pink color, that is 60 degrees. So 60 degrees into 225, which is 0, 6 5s are 30, 12, 15, 13. 13,500 tons only. Fine. Then fourth
is maize, which is shown by the gray color. Maize 30 degrees, right? So 30 into 225, which gives me 0, 5 3s are 15, 3 2s are 6 and 7, and 3 2s are 6 tons, right? And fifth, last but not the least, gram, which is denoted by cyan blue, 50 degrees. So 50 into 225, which gives me 0, 25, 12, alrighty, 12,250 टन्स. तो ये हमने अलग अलग इसको निकाल दिया. लिख लीजिए अब बच्चों फटाक से. कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा मुझे लगता है. 1000 ज़्यादा आ गया है. कहाँ गड़बड़ हो गई है भाई? 27,000, then 22,500, then 13,500, then 6,750 and 12,250. कहीं तो गड़बड़ हुई है. Let me see it, children. मुझको देखने दीजिएगा कहाँ गड़बड़ हो गई है. 81,000 divided by 360 gives me 225. That is correct. So 225 into 120 gives me 27,000. ये तो बिल्कुल सही है. Then 100 degrees into 225 भी सही है. 22,500 ही होगा, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं. Then 225 into 60 degrees gives me 13,500. ये भी ठीक है. फिर 30 into 225 gives me 6,750. ये भी ठीक है. फिर 225 into 50. एक छोटू सा मिस्टेक हो गया, छोटू सा. कैलकुलेशन मिस्टेक. देखो 1 लिखा है, ये 1, दिस इज 1. ठीक है. 11,250 टन. अब ये आ रहा है 81,000. बताओ, था तो 81,000, 82,000 आ रहा था. है मतलब कैसे पॉसिबल है ये बताओ. बट कोई बात नहीं. सो चिल्ड्रन, दिस इज इट फॉर टुडे. जब अपन रिविजन करेंगे दैट टाइम वी विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू मीन, मीडियन एंड मोड. So don't you worry about it, it will be calculated. ये वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना, इन द रिवीजन लेक्चर. So don't worry about it. So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.